Gentlemen, let's begin. Good evening, everyone. It's a pleasure to welcome Mr. Hadman Seth, the head of sales for ETF business at Nippon India Mutual Fund, to today's webinar. With over 27 years of experience in financial services across ETFs, mutual funds, banking, and distribution, Mr. Seth brings an unmatched experience in driving strategic growth and managing client portfolios. Having been with Nippon Mutual Fund for 18 years, he has successfully led teams and spearheaded innovative sales strategies. Since 2021, he has been at the forefront of Nippon's passive business, helping institutions, distributors, and HNIs achieve maximized returns through ETFs and index fund solutions. We look forward to his insights on navigating the evolving world of passive investing and his take on the same for the year ahead. Please join me in welcoming Mr. Hadman Seth. Good evening, sir, and over to you. Thank you so much, Ashish, for this warm welcome. And good evening, everyone. Thanks for joining in. Welcome to this webinar. So today we're going to talk about the passive funds and the broad landscape of passive funds and how passive funds can help you, manage your wealth, as well as how passive should be a important part of your overall portfolio allocation. So that is what we are going to discuss today. And before I start, I'll just put a presentation on the screen. Just allow me a minute. And Ashish, I would request you just please confirm whether this is visible or not. Ashish, you're Yeah, the presentation is up. Oh, great. So let's begin. So what you see here on the screen are four gentlemen, all very, very well-known people. So you have Charles Schwab, you have Jack Bogle, you have Charlie Munger, and you have Warren Buffett. Now, I'll not read what all these people are saying, but the gist of what all of them are trying to say is that typically they have made their wealth by investing into simple indices. Right? That is the core philosophy of all these four gentlemen who are in their own right are one of the largest investors in the world. And you can see, ye jo investors hain, ye India ke nahi. They're all global investors who are known by the kind of investments they have done and the kind of returns they have made globally. Okay, moving ahead. I'll just briefly talk about कि जब आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कॉमन बिलीफ्स क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करते हैं वही करते हैं कि जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है that is better than indexing. These are few beliefs, few myths, which during the course of this presentation we will try to address. हम ये भी कहते हैं कि जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पास्ट में, they will continue to outperform. And जिसको हम recency effect भी कहते हैं, bias भी कहते हैं, ये बहुत common है. And this is nothing to do with anything. This is human psychology. हम लोग market timing भी try करते हैं, and it's not only us. There are fund managers who try to time the market as well. Do try to pick up stocks depending on which stock is looking good. If it is a bottoms up approach. ये भी देखा गया है और ये भी माना गया है कि पैसिव फंड जो है यूजुअली वो सिर्फ इंडेक्स को इमिटेट करते हैं और उनमें अल्फा बनाना मुश्किल होता है अनलाइक इन एक्टिव फंड. एंड फाइनली पैसिव फंड्स शायद वेल्थ क्रिएशन में उतना हेल्प नहीं करते जितना कि एक्टिव फंड्स करते हैं. नाउ एट द ऑनसेट मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आई एम इन नो वे आई एम सेइंग दैट एक्टिव फंड्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. What I'm just trying to say is that these are a few common myths that are there in the market and there with the investors जब लोग invest कर रहे हैं, and we will try to address कि इसमें से कौन सी ऐसी myth है जो correct है या जो actually में myth है. First of all, we begin with the passive investment होती क्या है. So what we have done is we have compared active versus passive. तो active जैसे हमें पता है कि it is led by a fund manager. एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको एक एक्टिव फंड मैनेजर को बीट करना होता है. उसमें यू पे अ टोटल TER which includes the management fees. वो management fees is charged by the fund house, and that is because the intent is that that particular fund will
आउट परफॉर्म द इंडेक्स। और टिपिकली ये देखा गया है कि इसमें क्योंकि एक एक्टिव फंड है तो उसमें यूजुअली जो टर्नओवर है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर फंड पे कॉल लेता है कि उसको उस पे स्टॉक्स खरीदने हैं या बेचने हैं या उसको रियलाइन करना है। नाउ इफ यू कंपेयर इट टू द इंडेक्स फंड और इंडेक्स इन्वेस्टिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी फंड मैनेजर की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसिव फंड्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब जब मैं पैसिव फंड्स की बात करता हूं तो पैसिव फंड्स कैन बी ETFs एंड इंडेक्स फंड्स। So that is the broad scenario of passive investing. So when I'm talking about passive investing, it is equally good for ETFs and index funds. तो दोनों स्पेसेस में एक तो फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता, और यूजुअली ये देखा गया है कि इनके जो चार्जेस होते हैं वो यूजुअली एक्टिव फंड से सिमिलर कैटेगरी में कम होते हैं। वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट फी है वो कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। और क्योंकि इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो इंडेक्स है, तो इसलिए इसका जो टर्नओवर है वो भी कंपैरेटिवली टू एन एक्टिव फंड थोड़ा सा कम रहता है। तो ये तो हो गई डिफरेंस की बात। नाउ अब इंडेक्स फंड्स हमने देखा है ऑफ लेट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ इंडेक्स फंड एज आई गो फॉरवर्ड कि इस मतलब लास्ट ईयर एज इन इस फाइनेंशियल ईयर में किस टाइप का इनफ्लो आया है और कौन सी कैटेगरी में आया है। दैट विल आल्सो हेल्प यू टू अप्रिशिएट कि व्हाई इंडेक्स फंड्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर एंड व्हिच कैटेगरी इज रिसीविंग मोर मनी। तो a few drivers of passive funds, they are very transparent because इसमें एक underlying index है, वो index आपके पास available है। There is a website called NSE Indices, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। That is a publicly available index और वेबसाइट, उस पे जाके आप किसी भी फंड का अंडरलाइंग इंडेक्स कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट जो है आप एक यूनिट के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज मोर प्रोमिनेंट, जैसे यदि आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप खाली एक यूनिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें चूंकि कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, सो द नॉन सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो रहा है। जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क पोर्टफोलियो में कहां से आता है, वो आता है स्टॉक पिकिंग से और जो सिलेक्शन पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। तो सिंस ये दोनों एक्टिविटीज इंडेक्स फंड में नहीं होती, इसलिए सिस्टम नॉन सिस्टमेटिक रिस्क भी एलिमिनेट हो रहा है। आप चाहें तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस फंड में यू टिपिकली हैव स्लाइटली लोअर एक्सपेंस रेशियो देन द एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। Now, what we are trying to tell you in this particular chart is that why is it difficult to create an alpha in an active fund? About if you look at the numbers on the right, there are more than 21,000 intermediaries, right, who are taking a call on investing into stocks. And on the left, the two bar charts, the two pie charts, sorry, that you see, tell you that top 100 stocks, are contribute about 61% to the total market capitalization, and 50 stocks, only 50 stocks, contribute to almost close to 50% of the overall market capitalization. Now, just imagine कि यदि ये 50 स्टॉक्स पे इतना ज्यादा वेटेज है उनका इंडेक्स में, और उसको मोर देन 21,000 इंटरमीडिएरीज ट्रैक कर रहे हैं टू जनरेट एन अल्फा, सो it then becomes almost a zero sum game. Some of these entities on your right, they might be able to find that alpha and create that alpha, and many of them will not be able to create that alpha, right? So therefore, the gist of this chart is that as more and more people enter into this space, the alpha generation or the finding of alpha को खोजने के लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट लगेगा, और उतना ही उसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक फंड मैनेजर को अल्फा खोजने के लिए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर शीट। आई जस्ट ब्रीफली टच अपॉन दिस। तो ये एक स्पीवा स्कोर कार्ड है। स्पीवा इज अ स्कोर कार्ड व्हिच इज जनरेटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये यूएस की बेस्ड कंपनी है। ये हर 6 महीने में एक रिपोर्ट निकालती है जिसको हम स्पीवा रिपोर्ट कहते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड एंड पुअर इनएक्टिव वर्सेस एक्टिव, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये लोग इस रिपोर्ट में क्या करते हैं, ये लोग इस रिपोर्ट में वर्ल्ड ओवर
country wise and continent wise, they take out the performance of active fund managers vis-a-vis their underlying index. अब इसमें बहुत पिक्यूलर चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा. अगर आप ऊपर देखेंगे 2009 का स्कोर कार्ड, ये हर 6 महीने में पब्लिश होता है. तो दिसंबर 2009 में अगर आप देखेंगे तो 3 साल के पीरियड में लार्ज कैप कैटेगरी या 5 साल का पीरियड पकड़ते हैं, 5 साल के पीरियड में लार्ज कैप कैटेगरी में 71% ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर्स वर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स. This number went up to 86.67% in 2024 in a 5-year period in a large cap category, right? At the same time, अगर आप मिड कैप देखेंगे, मिड एंड स्मॉल कैप में, तो ये नंबर सिर्फ 43% है. तो what does this tell you? इससे the thing that we can conclude or the thing that we can observe is कि in a category like a large cap, जहां पे 50 स्टॉक होंगे या BSE के 30 स्टॉक होंगे या निफ्टी 100 होगा, वहां पे alpha creation is becoming more and more difficult. But in certain niche sectors like mid cap, like small cap, वहां पे आज भी जो fund managers हैं, they are able to beat the index and they have been doing so very, very strongly and very, very convincingly. So again, I'm saying I'm not equating one over the other. दोनों के मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूं और दोनों के मैं आपको ड्रॉबैक्स बता रहा हूं. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी विल आल्सो टेल यू कि आपको अपने पोर्टफोलियो को किस हिसाब से, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए. मूविंग अहेड, we'll just look at passive industry, how it has performed in 2024. This is the overall passive AUM. This number is as of November. December numbers, will be published in a day or two. So overall passive AUM is 11 lakh crores, जिसमें ETF is 8 lakh crores plus, and index funds is almost touching 3 lakh crores. Within this space, अगर हम इसको asset class wise देखें, तो इक्विटी का हाईएस्ट वेट है, 8.5 लाख करोड़ इक्विटी है, 2 लाख करोड़ के आसपास डेट है, और कमोडिटी जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर आता है वो 50,000 करोड़ है. इंपॉर्टेंटली ये जो 11 लाख करोड़ का आप AUM देख रहे हैं, दिस इज आउट ऑफ अ टोटल AUM ऑफ इंडस्ट्री विच इज करंटली एट अबाउट 70 लाख करोड़. तो अगर आप परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो ये परसेंटेज जो है, जो आज की डेट में 16-17% के आसपास, वेरी वेरी लो आज से 5 या 10 साल पहले. एंड दिस आई विल ऑल्सो शो यू ग्राफिकली इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट योर अटेंशन टू द फोलियोज. सो पैसिव में आज 3.5 करोड़ से ऊपर के फोलियोज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप टोटल इंडस्ट्री के फोलियोज देखें तो वो लगभग कुछ 18 करोड़ के आसपास के फोलियोज हैं. तो फोलियो का शेयर भी ग्रो हो रहा है और AUM जो है पैसिव का वो भी ग्रो हो रहा है. Before I talk about the India market, this chart tells you how big ETFs are globally. तो ग्लोबली जब हम पैसिव्स की बात करते हैं तो वहां पे ETF इज अ वेरी वेरी बिग कैटेगरी. वहां पे इंडेक्स फंड्स एक काफी छोटी कैटेगरी मानी जाती है, लेकिन ETFs बहुत बड़ी कैटेगरी है. एंड एज यू कैन सी टुडे इन द लास्ट मंथ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल ETFs इज टचिंग ऑलमोस्ट $15 trillion, और स्कीम्स भी मोर देन 10,000 स्कीम्स है जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही हैं. और यदि आप देखेंगे तो 2016 से जब ये ग्रोथ आना शुरू हुआ, this assets which were 3.4 trillion then are currently 15 trillion, so almost 5x times grow हुआ है in the last 8 years, which is a very healthy growth in terms of the overall growth of passive in the world. अब हम इंडिया मार्केट में देखते हैं तो if you look at it in India, as I was telling you, today the overall asset size now again, this data we have for November right now. So November, if you see, the overall percentage of passive to actives is 16.6%. But what is important is if you look at in March 2016, this percentage was only 1.8%. So you can imagine from 1.8 today we are almost at 17%. So that's the kind of growth the passive funds have seen in India currently. Now, if we were to further bifurcate it in terms of ETFs and index funds,
सो इसमें से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि टोटल एसेट्स 8.3 लाख करोड़ है ईटीएफ में, और उसका ग्रोथ भी लगभग आप देखिए 2016-2017 में चालू हुआ. Now there is a reason behind it. There has been a government intervention in the ETF market, and I'll just touch upon a few government initiatives that has led to the increase of ETF markets in India. These are the three things that I was referring to. तो सबसे important तो है जो EPFO है, the Employee Provident Fund Organization, as per their mandate, they are supposed to invest up to 15% of their incremental corpus into equities and oblique ETFs. तो हर साल उनको ये पैसा जो है इक्विटीज में डालना ही डालना है, और ये इन्होंने 2016 से शुरू किया. So therefore, the assets of EPFO in ETF are increasing. तो इसलिए जो आपको ETF में ग्रोथ दिख रहा है, it is largely contributed by EPFO. I would say about 30 to 35, 40% is contributed by EPFO alone. So EPFO continues to be the largest investor in ETFs. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बाय मैंडेट कुछ सिलेक्ट ETFs जैसे बैंकिंग या PSU बैंकिंग ETFs में इन्वेस्ट करती हैं. CPSE ETF एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था जिसमें कि दे वांटेड टू डिसइन्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो इस CPSE के तहत इन्होंने 6 FFOs लॉन्च किए, और इसका मैंडेट खाली उस टाइम पे निप्पॉन म्यूचुअल फंड को मिला था. तो ये एक गवर्नमेंट का फंड है जो निप्पॉन मैनेज कर रहा है. So because of these 2-3 initiatives, the ETFs have grown. But as I showed you, it is not only AUM but folio growth भी है. So normal common investor has also come in ETF in addition to the corporate and large institutional investors. This graph tells you about the kind of inflow. तो ये inflow जो हमने आपको दिखाया है, net sales मतलब gross जितना मेरा पास पैसा आया माइनस जितना मेरे से पैसा निकला, जो बच गया वो ये नंबर है आपको जो आपको सामने दिख रहा है, दैट इज नेट सेल्स. तो टुडे फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर ETFs का जो टोटल पैसा सिस्टम में ऐड हुआ है वो 68,000 करोड़ है, और इसमें जो लार्जेस्ट कैटेगरीज हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ये टॉप 4 कैटेगरीज हैं जहां पे मैक्सिमम इनफ्लो आया है अब तक अप्रैल से नवंबर तक. और पैसा निकला कहां से है? जो डेट ETFs हैं, जो टारगेट मैच्योरिटी ETFs हैं या गवर्नमेंट मैंडेट इक्विटी ETFs हैं, उनसे पैसा निकला. बाकी कैटेगरीज में पैसा आया है. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू इंडेक्स फंड्स. सो इंडेक्स फंड जैसे मैंने आपको बताया 2.7 लाख करोड़ का इंडेक्स फंड्स का मार्केट है, और इसमें जो ग्रोथ आई है वो आप देखेंगे कि 2022 से 2021-22 से ग्रोथ आई है. और इसमें यू वुड रिकॉल कि उस टाइम पे डेट का टैक्सेशन चेंज हो रहा था, तो बहुत से टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लॉन्च हुए थे, और उसकी वजह से इसका इंडेक्स फंड्स में एकदम से AUM में ग्रोथ आया था. एंड नाउ द लार्ज इनफ्लो इज कमिंग इनटू इक्विटीज बिकॉज ऑफ व्हिच द इंडेक्स फंड्स आर आल्सो ग्रोइंग. इसमें अगेन अगर नेट सेल्स की बात करें तो मैं आपको सीधा इस चार्ट पे ले जाता हूं जिसपे अगेन नेट सेल्स का नंबर है. तो अभी तक इस साल में ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ इंडेक्स फंड्स में आ चुका है, नेट ऑफ रिडेम्पशन. इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इनफ्लो है वो इंडेक्स फंड्स में आया है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, फॉलोड बाय स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स व्हिच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. जबकि आप अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखिए तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बाय फार वाज द लार्जेस्ट कैटेगरी, और स्मार्ट बीटा फंड्स बहुत ही छोटी कैटेगरी थी उसके मुकाबले, ऑलमोस्ट आधी थी. तो smart beta funds are gaining a lot of traction, and we will also touch upon very briefly about smart beta funds in this session, because जैसे हम देख सकते हैं कि they are also becoming a very very prominent category, और हमें लग रहा है कि मार्च आते आते तक शायद स्मार्ट बीटा फंड्स के जो इनफ्लोज रहेंगे वो निफ्टी 50 को भी बीट कर जाएंगे. A little about smart beta, though it is a very big category, but I'll just briefly touch upon this category because this might again take another 20-25 minutes to explain. So I'll just spend about 5 minutes on this smart beta presentation. तो होता क्या है स्मार्ट बीटा? स्मार्ट बीटा बेसिकली क्या है कि बहुत सिंपल अगर मैं आपको शब्दों में बताऊं तो एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट का बेस्ट चीजें ये एक्वायर करता है. एक्टिव क्यों है? क्योंकि इट इज अ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग.
और जो रूल है वो एक्टिवली चेंज होते हैं विद एवरी रीबैलेंसिंग। बट पैसिव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है और यूजुअली ये लो कॉस्ट होते हैं। तो द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपको एक स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग मिलता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पार्टनर्स के पास जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सिस सिक्योरिटीज के पास गए, तो एक्सिस सिक्योरिटीज भी हमें ये कहता है कि आज इन्वेस्टर इज लुकिंग एट समथिंग न्यू। इन्वेस्टर टुडे कहता है कि आज मेरी निफ्टी 50 में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब इसके अलावा कुछ और है तो आप हमें बताइए। सो दिस इज दैट समथिंग व्हिच इज, दो इट इज अ पैसिव फंड, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच इज यूनिक, व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो रिटर्न्स आते हैं दोज आर यूजुअली बेटर देन द अंडरलाइंग इंडेक्स। So to that extent, it is an active investing, but largely it follows all the principles of passive investing. अब इंडिया में कौन से मेजर इंडाइसेस या कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिसपे फंड्स बने हैं? वो ये है: अल्फा, लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, वैल्यू, इक्वल वेट, डिविडेंड यील्ड एंड क्वालिटी। अब जब भी किसी एएमसी ने फंड लॉन्च करना है, वो इनमें से कोई भी फैक्टर को चूज करके फंड लॉन्च कर सकता है, या अगर एएमसी चाहे तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स को भी यूज कर सकता, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को भी यूज करके फंड प्रिपेयर कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक अल्फा फंड अकेले लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, निफ्टी 100 अल्फा 50, दिस इज वन ऑफ द इंडेक्स फंड्स। द अदर एग्जांपल इज निफ्टी अल्फा लो वॉल 30। इसमें दो फैक्टर यूज हुए हैं, अल्फा भी यूज हुआ है और लो वॉल भी यूज हुआ है, और दोनों को 50-50% वेटेज दे दिया है। You can have something like a momentum alone or a momentum value, etc. etc. तो इंडिया में आज चार तरह के चार कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, मतलब एक ही इंडेक्स में आप चार फैक्टर भी यूज करके इंडेक्स बने हुए हैं। उसमें अभी तक फंड लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इंडेक्स जो है वो अवेलेबल है। तो आप यू कैन इमेजिन नाउ विद दीस 7 फैक्टर्स हाउ मेनी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब उसमें भी आप डिफरेंट मार्केट कैप यूज कर सकते हैं, निफ्टी 50 यूज कर सकते हैं, बीएसई 30 यूज कर सकते हैं, निफ्टी 100 यूज कर सकते हैं, निफ्टी 500 यूज कर सकते हैं, बीएसई 100 यूज कर सकते हैं, बीएसई 200 यूज कर सकते हैं। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, राइट? और हर एक के अपने अपने नुआंसेस हैं, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Without going to further, too much of detail in this, I would like to tell you about the landscape of ये smart beta funds कितने बने। तो जैसे आप यहाँ पे इस चार्ट में देखेंगे, ग्लोबली इफ यू सी दिस स्मार्ट बीटा इज अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट। टुडे आपको मैं खाली एक इसमें पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो जितने भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं, अगर आप उसका टोटल करें और आप स्मार्ट बीटा ग्लोबल ईटीएफ्स का टोटल करें तो दैट प्रोपोर्शन विल बी 1/4। यानी अगर $100 ट्रिलियन की ओवरऑल ग्लोबल ईटीएफ्स के मार्केट है, तो उसमें से $25 ट्रिलियन जो है वो स्मार्ट बीटा ईटीएफ में है ग्लोबली। अब उसमें से अगर आप इंडिया में कंपेयर करेंगे तो दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट वी विल टच अपॉन इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। जी ये देखिए, दिस इज द टोटल स्मार्ट बीटा स्पेस इन इंडिया, though it is growing at a very very fast pace, almost 200x का growth हुआ है from March 2020 till November 2024, but yet the total size of a smart beta in India is currently very very small. Currently we are only talking about a AUM of 38,000 crores, और अगर आप शुरू में देखें तो जो मैंने आपको बताया था 11 लाख करोड़ का टोटल पैसिव फंड का साइज है, उसमें से खाली 38,000 करोड़ के जो AUM है वो स्मार्ट बीटा में। So which is a very very small number. Globally this number is 1/4, as we just saw in the previous slide. So this is the breakup of this AUM. As you can see, the largest AUM is contained in Momentum Fund, which is almost 15,000 crores. Equal weight is 7,200 crores. Low volatility is 6,000 crores. And उसके बाद the number tapers down. And you will also notice कि अगर आप ये left वाला chart देखेंगे, this is ETFs. And right वाला chart is index funds. So largely the bulk of the AUM is in index funds and not in ETFs. तो इसमें स्मार्ट बीटा फंड की कैटेगरी में इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस इंडेक्स फंड्स में ज्यादा है और ETFs में रिलेटिवली कम है।
अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगेन बिफोर आई स्टार्ट दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. परफॉर्मेंस जितना भी आप यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे, you should also be aware कि they come with the equivalent risk. So please, do not get swayed by only the returns. Please go back to Axis Securities because they are, your best guide to tell you which fund it comes with what kind of risk, right? So here you go. So as you can see, हमने इसमें कुछ common जो strategies हैं वो पकड़ी हैं, and as you can see, momentum 50, Nifty 500 momentum 50 जो dark red line आप देख रहे हैं, this has delivered the best possible returns. तो 69 times return इस strategy ने दिए हैं, और उसके बाद जो green color है, जो alpha 50 strategy है, उसने 42x return दिया है. Right, but again, as I said, there are two sides to every coin. So these are only higher returns, but they also come with commensurate risk. So please evaluate your risk also before jumping into these funds. This is my last slide on Smart Beta. So इसमें what we have done is जितने भी factors हैं, हमने उसका performance दिखाया है आपको, calendar year performance from 2005 to 2024, and हर एक फैक्टर को हमने डिफरेंट कलर दिया है so that you are able to easily identify the factor. Now, as you can see, अगर आप नंबर 1 रैंक पे देखेंगे तो there is no one consistent color that you can see. अभी 2024 कैलेंडर ईयर में अल्फा वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटजी, उसके 2 साल तक वैल्यू था, उससे पहले मोमेंटम था, फिर अल्फा था. सिमिलरली अगर आप रैंक 2 पे देखेंगे तो अभी लास्ट 2 साल से मोमेंटम था, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस, बट उससे पहले निफ्टी 50 था, उससे पहले अल्फा था. सो देयर इज नो क्लियर ट्रेंड और क्लियर विनर दैट यू कैन स्पॉट फ्रॉम दिस चार्ट. हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो लगभग एक नंबर 1 और नंबर 2 रैंक पे मैक्सिमम टाइम है, और जो लो वॉलेटिलिटी है वो यूजुअली आपको नंबर 3rd और नंबर 4th रैंक पे दिख रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा क्लियर ट्रेंड इसमें नजर नहीं आ रहा. सो अगेन, किस फैक्टर में जाना है, कब जाना है, आई थिंक इट इज बेस्ट टू चेक विद योर एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल ऑन दैट. This is, I think we've already covered, so I will not touch that. Okay, now we come to कि इस साल में क्या expectation है, कौन से new launches हो रहे हैं, तो we'll just briefly touch upon that. इसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: थीमेटिक, ऑब्लिक फोकस सेक्टर ऑफरिंग्स, स्मार्ट बीटा ऑफरिंग्स, थीमेटिक टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड्स, न्यू ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस एंड हाइब्रिड इंडाइसेस. तो स्टार्टिंग विद हाइब्रिड फर्स्ट, तो हाइब्रिड एक ऐसी कैटेगरी है जिसको अभी अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी. देयर इज नो फाइलिंग that has happened right now. Index provider is in the process of creating an index. So this typically could be aggressive index जहाँ पे equity का proportion could be as high as 90%. This could be a conservative index जहाँ पे equity versus debt में हो सकता है कि equity is only about 20%. Moderate में equity and debt could be 50-50% each, and growth will also be largely equity oriented. तो इसके indices अभी बन रहे हैं. जब ये बनेंगे तो most of the AMCs will come and launch the products. Again, thematic में new themes like select IPO, Indian Railway PSU, Internet Economy. Smart Beta में Nifty 500, Low Vol 50, Quality 50, BSE 200 equal weight. Target Maturity में Financial Services Index जो पहले नहीं अलाउड होती थी वो अब अलाउड हो गई हैं, तो उसमें काफी फाइलिंग्स हुई और काफी फंड्स आ गए हैं. ब्रॉड बेस में BSE Sensex Next 30 is one of the ideas. MSC India is another idea. Nifty 200 is another idea. So this is what, as investors, you can expect, or you can hope that all of these products will come in, and you will have further. As an investor, you'll be again spoiled for choice to pick and choose इनमें से किस theme में या किस sector में आप जाना चाहते हैं. Finally, what are ETFs? Because that is the core and the crux of our discussion. So I'll just spend a couple of minutes on this. ETF, as I said, it is a blend of stock and mutual fund. Why a stock? Because it is traded on the stock exchange. Why a mutual fund? Because it has its own NAV. It gives you a day-end NAV. The difference is कि
इसमें आप इन्वेस्टमेंट चाहे तो लाइव एनएवी पे कर सकते हैं, लाइव प्राइस पे कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डे एंड का एनएवी ही मिलता है। तो अनलाइक अ म्यूचुअल फंड, ETFs you can buy and sell live on the exchange. जैसे मैंने आपको बताया, ये फंड की तरह भी बिहेव करता है और स्टॉक की तरह भी बिहेव करता है। स्टॉक की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रियल टाइम प्राइस आ रहा है आपको। आप जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज की साइट पे जाके आप हर ETF का लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं कि उसका आज की रेट में NSE के इस टाइम पीरियड पे NSE का क्या रेट, NSE की साइट पे क्या रेट चल रहा है, या एक पर्टिकुलर ETF का क्या भाव चल रहा है। ये आप उसमें लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ एक यूनिट से बाय और सेल कर सकते हैं, और इसकी जो डिलीवरी है डायरेक्टली वो आपके डीमैट अकाउंट में होगी। जबकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो या एक उसमें एक्टिव या पैसिव में, तो आपको एक अंडरलाइंग इंडेक्स मिलती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एनएवी मिलेगा वो डे एंड मिलेगा। उसमें आप डायरेक्ट टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट का। जैसे यदि आपने सुबह इन्वेस्ट करना था और मार्केट गिरी हुई थी, तो आप उस चीज का बेनिफिट, अगर शाम तक मार्केट रिकवर कर गई तो वो बेनिफिट शायद आप म्यूचुअल फंड में नहीं ले पाएंगे जो आप ETF में ले पाएंगे। लेकिन ETF नेसेसरीली करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, अदरवाइज आप ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। I think this I've already discussed. One important thing is कि ETFs usually are a very low cost. So एक cost का बड़ा important factor है जो ETFs को फेवर करता है। और मार्केट टाइम पे, मतलब सुबह 9:15 से 3:30 तक आप ETFs में किसी भी ETF को बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये खरीदने कैसे हैं ETF? बहुत सिंपल है। आप डायरेक्टली एक्सिस सिक्योरिटीज की साइट पे जाइए, वहां पे आप ETF जो भी आप बाय करना चाहते हैं उसका नाम या उसका कोड लिखिए, उसका जो लाइव प्राइस है वो आपको दिख जाएगा। वो आप डायरेक्टली उस पे अपनी क्वांटिटी डालिए और अपना लिमिट ऑर्डर डालिए, और दैट ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड। इट इज एज सिंपल। जैसे आप नॉर्मल एक स्टॉक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही आप एक ETF में भी इन्वेस्टमेंट या रिडेम्पशन कर सकते हैं। आपको नेसेसरीली इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू गो थ्रू योर स्टॉक ब्रोकर, दैट इज नाउ मैंडेटरी अनलेस एंड अंटिल योर इन्वेस्टमेंट साइज इज more than 25 crores. For all amounts lower than that, you have to go through your broker. These are the volumes on the stock exchange. So हमारे जितने भी funds हैं, broad categories जो ETFs हैं, भले निफ्टी 50 है, बैंक है, गोल्ड या लिक्विड है, दिस इज अ पब्लिकली अवेलेबल डाटा। ये NSE से डाटा निकाला है हमने, और ये लास्ट क्वार्टर का डाटा है। बेसिकली टेल्स यू द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट आर हैपनिंग ऑन आवर फंड्स ऑन अ एवरीडे बेसिस। ये डेली वॉल्यूम्स है। तो निफ्टी 50 जो निपॉन का निफ्टी 50 है, उसका वॉल्यूम आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरी डे इट इज क्लॉकिंग ऑलमोस्ट 136 crores on the exchange. Similarly, bank ETF 46 crores, gold is 70 crores, and liquid is close to 400 crores. So these are the kind of volumes that are happening on the exchange. This is only relevant, only important यदि आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस वॉल्यूम डज नॉट हैव एनी मीनिंग, बिकॉज वहां पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ही बाय करेंगे और म्यूचुअल फंड से ही सेल करेंगे। So this was all I had. I think I'm right on time. So I think I am done. We can take any questions, or in case there's any observations, I'll be more than glad to address that. Thank you, Mr. Seth, for these valuable insights. I'm sure the participants have a better knowledge on ETFs as to how it's been progressing over the last 6 to 8 years. A few questions, just understanding, हम अगर ये सोचते हैं कि if we are focusing towards जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो passive investing में नए आए हैं, so उनके लिए 3 ऐसे check points which you would advise before selecting an ETF or an index fund. What would be those 3 check points that you would advise? देखिए, for the first time investor it is very important. A is that they need to first of all be very clear that they are investing in markets, and markets are subject to volatility, right? So the first and foremost is doing your risk assessment first, and then deciding which asset class they want into, because
both index and ETFs will offer you, आपके पास एक बहुत बड़ी चॉइस होगी. आपके पास इक्विटी की चॉइस है, डेट की चॉइस है और कमोडिटी की चॉइस है. एंड विद इन दैट ऑल्सो इक्विटी में आपके पास ब्रॉड मार्केट है, आपके पास सेक्टोरल है, थीमेटिक, स्मार्ट बीटा, इंटरनेशनल फंड्स. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. So for a first time investor, once you have done your risk assessment, the second most important thing is to ensure कि आप सबसे पहले जो एक्सपोजर लेंगे वो भले आप ETF के थ्रू लीजिए या इंडेक्स फंड के थ्रू लीजिए, बट आपको एक ब्रॉड मार्केट का एक्सपोजर लेना है. अब उसमें you can select very basic fund like a Nifty 50 or a BSE 30, BSE Sensex 30. So you have to start with that. And then, as your confidence grows, as you start understanding, उसके बाद the third step is that you can move into other products. जैसे other products जैसे मैंने आपको बताया कि thematic है, sectoral है, smart beta है, वो funds थोड़े से fancy हैं, उनमें slightly risk भी ज़्यादा involved है, लेकिन at the same time, if you stay put, अगर आप उसमें invest करते हैं तो हो सकता है कि आपको returns भी उस हिसाब से commensurate returns भी मिले. So I think from that perspective, it is very, very important. One more thing, that I would also like to highlight for a first time investor is also to very clearly look at the total expense that a person will pay. अब usually क्या होता है कि आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन एक हर फंड का एक एक्सपेंस होता है जो आपको चार्ज होता है, जो NAV में बिल्ट होता है, राइट? तो आपको ये भी बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ऐसे फंड में देखिए, एक ऐसे फंड में जाइए जिसका TER जो है, जिसको हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो लो. क्योंकि यदि आप एक ज्यादा TER दे रहे हैं तो तब तो आप एक्टिव फंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप एक फंड मैनेजर को भी फीस दे रहे हैं. लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई फीस इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको एक TER का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसी फंड में जाइए रिलेटिवली जहां पे आपको TER कम दिख या जहां जो फंड एक TER कम चार्ज कर. तो आई थिंक ये आशीष 2-3 पॉइंट्स हैं जो एक इन्वेस्टर को ख्याल में रखने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग टू कम इनटू दिस. Great to know, sir. A few more questions, I think, which the participants will also agree. So, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से markets are very uncertain. There's a downside movement coming up. There's upside, downside. Very uncertain markets. कुछ certainty नहीं दे रही है. Sir, ऐसे situation में how would an ETF help an investor to navigate these current scenarios that they are facing or the uncertainties that they're facing? So देखिए, इसमें ना आशीष, if you're invested into for example an equity market, तो देखिए इक्विटी मार्केट जब फॉल कर रहा है तो हर एसेट क्लास जो उसके जो अंडरलाइंग जिसमें इक्विटी है वो फॉल करेगा. तो उसमें कहीं भी कोई ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं है किसी भी फंड में, भले वो एक्टिव हो भले पैसिव हो. हाँ, फर्क क्या पड़ सकता है? फर्क ये कि आप यदि आप खाली एक ब्रॉड एक बेस्ड मार्केट कैप वाले फंड में है, तो वहां पे कंपेयर टू से अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप और अ स्मार्ट बीटा और अ थीमेटिक, आपको हो सकता है कि फॉल लिमिटेड हो और फॉल कंटेन रहे. दैट इज नंबर 1. दूसरा, फॉर मोर सेवी इन्वेस्टर एक ये भी देखा गया है कि अगर कहीं मार्केट जैसे मार्केट आज तो चलो एक यूनिडायरेक्शनल था, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है दिन भर. आप मार्केट ओपन हुआ, बहुत बड़ा फॉल आया, लेकिन फिर दोपहर तक मार्केट रिकवर कर गया, या सुबह ठीक खुला लेकिन शाम को बहुत बड़ा फॉल आ गया बिफोर क्लोजिंग. तो फॉर सेवी इन्वेस्टर्स जो ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस चीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं ETF के थ्रू कि जब मार्केट फॉल कर रहा है तो उस टाइम दे कैन बाय, राइट? एंड इफ दे ऑलरेडी हैव यूनिट्स इन देयर डीमैट अकाउंट, इफ मार्केट इज अप दे कैन सेल आल्सो. हाँ, सेम डे पे इंट्रा डे अलाउ नहीं है ETF में, तो यू कांट नॉट हैव अ डिलीवरी ऑफ ETF एंड सेल इट, तो शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है. लेकिन आपके पास यदि ऑलरेडी यूनिट्स हैं ETF के और मार्केट राइज किया है सुबह, आपको ठीक लेवल लग रहा है तो आप उसको बेच भी सकते हैं. सो फॉर दिस इज फॉर सेवी इन्वेस्टर्स, बट आई थिंक फॉर जनरल इन्वेस्टर जो पहली बार आ रहा है, आई थिंक उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रिस्क को कंटेनमेंट करें. अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्जली ब्रॉड मार्केट बेस्ड फंड्स में करें, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया लो TER फंड्स को चूज करें जहां पे आपका अपफ्रंट कॉस्ट भी कम हो और आपको मार्केट का एक्सपोजर भी मिले. और उसमें आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम एक यूनिट से भी परचेज कर सकते हैं, राइट? एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल यू कैन इन्वेस्ट हायर. Good to know, sir.
So इसके आगे just moving this question further. So let's say we're talking about an investor who's already got a portfolio. He's got a portfolio. How can he have passive investment instruments to create an overall balanced strategy? Yeah, Ashish. So, I think what is very, very important to know and what we always advise investors to do is follow a core and a satellite approach. तो कोर अप्रोच में क्या है कि कोर अप्रोच में आपके वो वाले फंड हैं जो यूजुअली आपके कोर ऑफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं. जैसे टिपिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कोर में आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर रहेगा प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द इक्विटी दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेफेस्ट क्लास. तो लार्ज कैप विल हैव प्रिडोमिनेंट एक्सपोजर इनटू दिस. आपके पास कुछ उसमें गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सपोजर हो सकता है फॉर डी रिस्किंग. कुछ आप उसमें डेट का भी एक्सपोजर रखेंगे. सो दैट विल फॉर्म अ कोर ऑफ आवर पोर्टफोलियो. तो जो कोर में हम व्हाट वी एडवाइज आवर इन्वेस्टर्स इज टू पुट say 20-25% of their investments into passive funds. For example, Nifty 50 या BSE Sensex 30. तो उससे क्या आपको बेनिफिट होता है कि एक तो आप लो कॉस्ट में उस कोर फंड में आ गए, नंबर वन. और नंबर टू, क्योंकि उसका कॉस्ट लो है और उसमें कोई बहुत ज्यादा अल्फा क्रिएट नहीं हो पा रहा जैसे हमने पुराने एग्जांपल्स में देखा, तो आप एक लो कॉस्ट में आपने पूरे ओवरऑल इंडेक्स और मार्केट का एक्सपोजर ले लिया. हाँ, जहां तक आपकी सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट अप्रोच में आपके पास थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड, स्मार्ट बीटा फंड्स, वो सब आपके जो है वो सैटेलाइट अप्रोच में आ सकते हैं. और जो पोर्टफोलियो का जो कोर है वो इस तरह से क्रिएट होना चाहिए. और जो सैटेलाइट है वहां पे आप यू कैन टेक अदर एक्सपोजर्स आल्सो. तो दैट कैन बी इक्विटी, दैट कैन बी सम इंटरनेशनल इक्विटी भी हो सकती है वहां पे, या इट कैन बी अदर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. Right, sir. So as you just mentioned, sir, in the previous conversation, that we can have gold and silver ETFs as a part of their investment strategy. So जैसे देखा गया gold and silver, these precious metals, इनको traditionally safe haven assets बोलते हैं, like market crash or market bad times के लिए these are like safe haven assets, right? So मेरे को ये जानना था sir, like how would a gold or a silver ETF compare to a physical gold or physical investments in these precious metals, which would be in terms of cost, their liquidity, the convenience, and the risk that is involved? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी कमोडिटीज हैं जो सेबी ने अलाउ की हैं, जिसके अंडर आप ETF लॉन्च कर सकते हैं. So silver is a new development. Gold में we were the pioneers. Nippon was the pioneer, but silver has been relatively new. But आज इन्वेस्टर के पास दोनों ऑप्शंस हैं. गोल्ड और सिल्वर को वो ETF फॉर्म में यूज कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है. तो टिपिकली जब आप एक फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं, तो the biggest issue that you face while you buy a physical gold is the purity, right? आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, बाय करने जाते हैं, एक तो वहां पे मार्कअप चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं. दूसरा, now the jeweler is trusted. I'm not even doubting the credibility of the jeweler, but at the end of the day, आपको गोल्ड जो मिल रहा है, how are you sure कि that is a pure gold? Number one. Number two, the weight is absolutely fine. How are you sure? Then most importantly, उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम है. आप उसको स्टोरेज करेंगे, आप या तो लॉकर में रखेंगे, और लॉकर का भी आप खर्चा बियर करेंगे. घर में रखेंगे तो वैसे भी रिस्क रहेगा. सो ऑल ऑफ दीज जितने भी मैंने आपको फैक्टर बताए, इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको मिटिगेट करने के लिए द क्लियर सोल्यूशन इज ETFs. अब ETF क्या करता है सर? ETF का एक बहुत सिंपल फंडा है. Every unit of gold ETF और silver ETF जो भी आप बाय करेंगे, it is backed by physical gold और physical silver. अब ये physical gold और physical silver जो हम ले रहे हैं, ये हम किसी ज्वेलर शॉप से नहीं ले रहे हैं. ये जो हम physical gold बाय कर रहे हैं, this is an imported gold. इसके लिए the buying and selling is done through authorized participants, which are usually banks. और इसकी जो स्टोरेज है वो भी एक स्टैंडर्ड, इट इज बीन गिवन टू अ स्टैंडर्ड स्टोरेज एजेंसी, जो वर्ल्ड ओवर की लार्जेस्ट स्टोरेज एजेंसी विच इज कॉल्ड ब्रिंक्स. तो जितना भी एक ग्राम भी जो गोल्ड हमने खरीदा, वो गोल्ड इज स्टोर्ड इन दिस वॉल्ट, एंड ईच एंड एवरी ग्राम ऑफ गोल्ड इज ऑडिटेड फॉर इट्स प्योरिटी एंड इट्स वेट. और ये जो ऑडिट है, ये हमारा इंटरनल ऑडिट नहीं है, ये हमारे इंटरनल ऑडिट के साथ साथ ट्रस्टी ऑडिट भी है और सेबी का ऑडिट भी है. सो एवरी मंथ
the entire quantity is checked with the number of units. The purity of the gold has to be standard. That is why we only buy imported gold. तब इसमें सर आपके लिए बेनिफिट, एक इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आपने ETF बाय किया तो यू आर अश्योर्ड कि उसके अंडरलाइन का जो गोल्ड है वो बिल्कुल प्योर है. The purity is 99.99%. It has to be that pure. Number one, every unit approximately of gold corresponds to 0.01 gram of gold. Right? Securities की साइट पे जाइए, वहां पे आप ETF का नाम डालिए. जैसे निपॉन के लिए ETF का नाम है गोल्ड पीस, तो आप गोल्ड पीस डालेंगे तो आपको गोल्ड का भाव दिखेगा वहां पे. आप उस भाव पे आप जाइए, आप परचेस करिए. The units of gold ETF will be in your demat accounts on T+1. So as an investor, अगर आपके पास अगर आपके पास 100 यूनिट है, तो then you are sure कि the equivalent amount of gold is there in the vault which is stored and which is safe. तो आपको कोई लॉकर का खर्चा नहीं करना, आपको कोई लॉकर की मेंटेनेंस नहीं देनी, आपके कोई घर में गोल्ड नहीं है जिसका कोई थेफ्ट का रिस्क है. तो all these things are mitigated. The only thing here is कि typically जो गोल्ड ETFs हैं या सिल्वर ETF है, जो मैंने आपको बताया वो सेम ट्रू फॉर सिल्वर आल्सो. तो इनमें द ओनली डिफरेंस इज कि दे कम विद स्लाइटली हायर एक्सपेंस रेशियोज, बिकॉज इसमें एज अ AMC वी बियर अ लॉट ऑफ कॉस्ट. इसमें स्टोरेज का कॉस्ट है, इसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट है, इसमें गोल्ड को इंपोर्ट करने का कॉस्ट है. राइट, ओवर एंड अबव वी आल्सो हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड. ऑल ऑफ दोस कॉस्ट हैव टू बी बियर. राइट, सो बिकॉज ऑल ऑफ दोस कॉस्ट हैव टू बी बोर्न, तो इसलिए इसका जो TR है वो स्लाइटली अदर पैसिव फंड से हायर हो जाता है. बट इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ बाइंग गोल्ड. अभी मैं आपको एक फाइनल थिंग इसमें ये बोलूंगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने पीछे SGB लॉन्च किया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. राइट, जो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको दोबारा लॉन्च नहीं करेंगे. अब वो लॉन्च तो हो गए सर, लेकिन वो SGB के जो अंडरलाइन है वो गोल्ड नहीं है. दैट इज अ सिंपल इन्वेस्टमेंट दैट इज देयर. हाँ, उसमें आपको डेफिनेटली 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है. राइट, बट इंपॉर्टेंट इज कि उसका अंडरलाइन गोल्ड नहीं है. एंड इंडियंस की मेंटालिटी ये है कि यू वांट गोल्ड, तो एंड दे नो गोल्ड बेटर देन यू एंड मी. राइट, सो यहाँ पे आप SGB तो ले रहे हैं, लेकिन उसका जो अंडरलाइन है वो एक पेपर है. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट टूल, दैट एक्चुअली इज नॉट अ गोल्ड. राइट, अब तो खैर वो नया लॉन्च भी नहीं हो रहा, तो उसको सेकेंडरी मार्केट से ही आपको बाय और सेल करना पड़ेगा, तो प्राइमरी में तो वो इश्यूएंस नहीं होगा. So I hope I have answered the question, Ashish. Armanji, thank you for the insight, sir. I'm sure this would give the investors who are looking at gold or silver investment में सोच से a better confidence of looking at the ETFs as an alternate investment rather than physical buying and selling of gold, sir. So one last thing, as जैसे हमारे discussion में हमने कहा कि पिछले 8 सालों में there has been a 5x, 15x increase in the AUMs coming in, the volumes coming in, sir. One reason जो आपने बताया is the government intervention which is coming. अच्छा, any other factors जो आपको लगता है कि ये भी factors होंगे जिसके कारण these volumes or these numbers have increased other than the government intervention coming in? Sure. So इसमें जैसे ETFs में definitely government intervention ने एक boost दिया, लेकिन उसके बाद this trend actually caught up. आपने भी I think ये feel किया होगा as an advisor to the investors कि आज बहुत से इन्वेस्टर ये सामने से पैसे फंड्स की डिमांड कर रहे हैं. राइट, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एक बहुत एमफी ने भी इसमें एक बहुत लंबा एक मीडिया कैंपेन चल रहा था पैसे फंड्स, और बहुत सी AMCs ने भी इसको ग्राउंड लेवल पे प्रमोट किया है. और अब तो ऐसी AMCs आ रही हैं जो सिर्फ पैसिव ओनली फंड्स लेके आ रही हैं, जो डिजिटल है और जो सिर्फ पैसिव ओनली फंड्स लेके आ रही है. क्योंकि जैसे आशीष आपने भी देखा, जो मैंने चार्ट्स में दिखाया था, कि अगर ग्लोबली आप देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसे फर्स्ट चार्ट में आपको मिस्टर जैक बोगल के बारे में बताया, तो ही इज द फाउंडर ऑफ वैनगार्ड. अब वैनगार्ड एक सबसे बड़ा AMC है USA में, जिसके 95% ऑफ द एसेट्स आर इन पैसिव फंड. राइट, तो उसके हिसाब से अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया को तो अभी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है. मतलब इट हैज जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया. सो people are catching up to this the benefits of passive investing, and I think this is one trend which has started, which is now becoming very, very difficult for anybody to stop this trend. So most of the AMCs and most of the partners are now adopting and
embracing this trend, if I were to use this word. Great insights, Harmanji. So as you said, that this trend is just starting in India, and I'm sure this trend is here to stay, and we would see many more such investments and more volumes coming into this. So for now, these are the questions that I had from my end. So I would like to put it up to the participants now. If anyone has some questions, they could put it on the chat. For those who are on WebEx, those on YouTube Live, you could put it in the chat box. There is one question which I had while during the discussion which was on from Mr. Rakesh Gupta, and I think you've already answered that. When he asked that, can we check the live NAV or live history? As a matter of, he's asking, can we check the NAV history for all these ETFs or index funds, and where would that be available? जी, तो इसके लिए you will have to go to the AMFI website. For a respective AMC, you can go to the respective AMC website also. It is mandatory for us to publish the entire history of NAV. और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी एएमसी के लिए देखना है तो एएमसी की वेबसाइट पे चले जाइए, एल्स आप सीधा एमफी की वेबसाइट पे जाके all the previous history of NAVs will be available there. Thank you, Harmanji. So to the participants, we there for another few minutes, another 3 minutes to 4 minutes. Any questions, please feel free to type into the chat box for those participants who are on WebEx, and on the comments box for those who are on YouTube Live. Soumyaji, there is a question from your end that can we suggest any passive funds? Unfortunately, on this forum, we would not be in a position to suggest any passive funds. That would be more for you to speak to your investment manager. Another question that we have is, we've spoken about value funds, momentum funds. How do we choose for them? Which I believe Harmanji has already answered, but still, if you could still take the floor. So the question is, how do you choose between different funds, a value fund or a momentum fund, or any other fund, as a matter of fact? Yeah, so as I said, within Smart Beta, you have various options. As I said, there are 7 factors to choose from, and we also saw in the summary that heat map that we showed you. No single factor has outperformed in any in any 1 year. So every year, this format is changing. कभी value perform कर रहा है, कभी momentum perform कर रहा है. तो as an investor, it will become very difficult for you to pinpoint and pick कि कौन सा ऐसा factor है जो हर साल में आपको अच्छा return देगा. It will be very difficult to predict. It is not possible for anybody to predict. But having said this, it is also important for since you specifically asked about value and momentum. So let me take about half a minute to explain what these 2 strategies are. Momentum is nothing but price returns, risk-adjusted price returns of 2 points, 6 months apart. तो एक जून का प्राइस रिटर्न और दिसंबर का प्राइस रिटर्न दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इससे एक स्टॉक का Z स्कोर निकलता है, उसके बेसिस पे द मोमेंटम स्टॉक्स गेट डिसाइडेड बाय द इंडेक्स. तो बेसिकली मोमेंटम का मतलब हुआ कि जो स्टॉक तेजी में है उसी में आप वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जब वो और तेजी में जाए तो आपको बेनिफिट. That is momentum in clear and plain language. Coming to value in simple and plain language is the concept of finding a stock जिसका अभी value undiscovered है या जो undervalued है. Stock अच्छा है लेकिन undervalued है. So these are 2 very distinct strategies. Whenever you decide to invest into these kind of funds, please go through the detailed presentations. Consult, with your partners, with Axis Securities, and then you can take a call on which factor to invest in. Factors बहुत हैं sir, लेकिन you have to base it on your risk assessment, which Axis Securities will do. They will be able to guide you best कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए. A few more questions, Harmanji, before a couple of minutes. So a general question which we usually see across board, across asset classes, is it better to hold ETFs rather than trading them? Is it better to hold them for the long term rather than trading them actively? So देखिए, ETFs gives you an option to trade. It's an option, right? It doesn't mean that you really need to trade them often. So देखिए, मेरे पास खुद के ETF हैं
जो मैं पिछले 4 साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नॉट सोल्ड देम. सो इट इज अ फैसिलिटी बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू रियली यूज इट. देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट का साइकिल है, एक इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है. आप चाहे तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेम फंड. आप चाहे तो इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, एक्टिव फंड में भी कर सकते हैं. ETF में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो आपको एक बेनिफिट देता है कि आप लाइव प्राइस को ट्रैक करके उसको खरीद या बेच सकते हैं, पर इट डजंट टेल यू कि आपको वो करना ही है, राइट? तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है मार्केट पे, तो भले आप ETF में इन्वेस्टेड हैं, चाहे इंडेक्स में है, चाहे एक्टिव में है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए. Such kind of market volatility जैसे आजकल चल रही है, that should not prompt you to take any decision in haste. That doesn't make a difference कि आप ETF में है कि म्यूचुअल फंड में. That doesn't make should not dictate your change at all. Right. So another question, which is with regards to the dividend that is paid by the ETFs. So one is like, when the companies declare ETFs, does the ETF also declare a dividend, or does it also pay out the dividend? So basically, जब dividend declare होता है, और अगर वो एक ETF में track हो रहा है, so is the ETF also paying out dividends to the customers? Sure, I think it's a very good question. तो इसमें सर क्या है, देखिए, ETFs में I would inform the investors that there is no option of growth or dividend. Unlike in a mutual fund जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते हुए ऑप्शन मिलता है ग्रोथ या डिविडेंड का, ETF में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता. तो ETF में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इज ग्रोथ. अब बिकॉज दैट ऑप्शन इज ग्रोथ, दैट डजंट मीन कि अगर उसमें कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके अंडरलाइंग स्टॉक में तो उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है, इसमें हर एक स्टॉक का जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, भले वो डिविडेंड है, भले वो मर्जर है, डीमर्जर है, जो भी है, तो वो जो सारा एक्शन है वो सारा का सारा एनएवी में आपको रिफ्लेक्ट होता है. तो उसका एनएवी ग्रो होता रहता है बिकॉज इट इज अ ग्रोथ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट. So there is no declaration of dividend in a ETF. आपको कोई डिविडेंड, फिजिकल डिविडेंड ETF में नहीं मिलता. Just one more question. I think, sir, everything comes out to the same thing. The couple of questions which I have got, like, does Axis Security allow SIPs in ETFs, and can SIPs done in ETFs? I would take the opportunity to answer. Yes, Yeah. Axis Security does allow SIPs in ETFs. And as an individual, you can surely opt for SIPs in an ETF. Harmanji, correct me if I'm wrong. बिल्कुल ठीक है, आशीष जी, absolutely right. And there's one question I've got on similar lines. How do we compare SIPs on ETFs to investing on an ad hoc basis? Which would be better strategy? This is by a gentleman, Jaydeep. Jaydeep, as we said, we would not be in a position to comment what is a better strategy, what is not a better strategy. And as we said, SIPs is, Dharmaji, I would just say that SIPs is a slow and steady investment over a period of time into a particular assets, and investing on an ad hoc basis is like you just take a call going by the gut, and it could be profitable, it could not be profitable. But with the SIP over the long run, you know that it is due for the growth. Harmanji, your take on this? नहीं, बिल्कुल ठीक है आशीष जी. इसमें आप देखिए ना, अभी जैसे अभी पिछले 4-5 दिन से मार्केट फॉल कर रही है, राइट? अभी अगर आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर 5 दिन आप थोड़ी पैसा डालेंगे. मतलब ऑफ कोर्स अगर डाल सकते तो बहुत बढ़िया है, बट यू डोंट नो कि अभी ये कितनी देर मार्केट नीचे रहेगी, राइट? तो अगर आपकी अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो, और आपने SIP किया हुआ है, तो देन फिर आपको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि कुछ टाइम ऐसे भी इन्वेस्ट किया जब मार्केट बहुत डाउन थी, हाँ, कुछ टाइम ऐसे भी इन्वेस्टमेंट हुआ जब मार्केट अप थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो एवरेज आउट हो गया. या unless you have loads of wealth and you can invest every day when the market is falling, then the thing is different. But I'm sure all of us are sailing in the same boat. We have limited funds, and we need to be very, very cautious when those funds get invested. And sir, just adding on to your point, if we talk about SIPs in an ETF per se, the period right from 2018 to, let's say, till 2024, right, we've seen the market falling to about 7,500 and then rallying back to over 24,000. I think that itself is proof enough that a slow and steady investing as an SIP in the markets on a regular basis would surely give you better returns than getting ad hoc, wherein you have to manage it. Time and again, it has been proven that SIP is a best form of investing, and right. We have so much of data on this. I mean, and investors have also been so much educated on this now. So इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, Ashish. You are absolutely right. Great. So Amarji, I think that's the time all we have for now. And it was really, really grateful. I'm really grateful to you, sir, to taking time out
to helping us spread the investor awareness more and especially towards an asset class like ETFs and passive investing. Really thankful to you, sir. And thanks to all the participants for taking time out and being a patient listener and for all your questions. Thank you so much, Ashish. It was pleasure interacting with all of you. Thanks for this opportunity, and many thanks to all of you for joining on this call. Thank you, sir. Thank you.